शर्मिला जजोदिया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैडम, यस। हाँ, पेपर प्रस्तुत करें मैम आप। ओके मैडम। Good afternoon, everyone. The title of my paper is Why Translation Skills and Enigma Skills. A translator needs to be bilingual as well as bicultural. So, Susan Bessett said, when you are a bilingual, you also become bicultural. It also means that you have more perspectives. It gives you a sort of double vision. So, a translator need to know not only more than one language, the translator also need to know more than one culture. I mean, the translator need to know the source language as well as the target language as well as the culture of the source language and the target language. Besides having the knowledge of the two cultures and the two languages, the translator also needs to be a creative person. He should have good sense of critical understanding. He also needs to know the rules of the two languages. Then only person can become a good translator. He needs to have understanding of sense, tone, feeling, attitude, what the writer of the source language wants to say through his text, and what he wants to convey to his reader who will be reading the translation of that particular text. In the process of translation, translator encounters many obstacles. It may be related to the language, it may be related to the culture, it may be related to the spatial arrangement, typography, and so many other things. For example, if a translator translates a text from one language to another language, the literal translation may be completely different from the original text. Especially in poetry, I have quoted one poem, "प्रियाम की मधुशाला," written where he said, "प्रिया मदिरा से देना सींच अधर मेरे होठों को मिलान, मरुतक मदिरा से प्राण मेरे शव को स्नान." A little of the content is like this. Beloved, moisten with wine my lips as they become death withered when I die, my dear, bathe my body with wine. If you read the Hindi text, it's like Mritla, but translation content is read, which I have done myself. There is no rhyme scheme and it's withered. So this type of obstacle a translation encounters. Second, cultural identity. Suppose I say in me that you are one who are me. If we translate it into English, I no longer know who or what I am. So the translator may face problem like spatial arrangement when the text is written in a different way. For example, if a Hindi writer writes बिखरे हुए लोगों के बीच, if I translate it in typographically among crumbling people, so it will appear completely different. So a great translator need to keep the spirit of original text while translating the text. But many times it happens the translator is not able to find suitable words for what express or the feelings expressed in the original text. For example, the word sindoor, if we translate it into English, the translator will not be able to find a single equivalent word for sindoor. Similarly, for the cigar, if the translator translate it to pipe, then the feeling, the attitude, the tone, the sense is untranslated.
because a person cannot understand what the pipe means, what the cigar means. A person who knows cigar will not be able to connect with pipe in the same way the person connects with cigar. So this is what happens. A translator has to be fidel and not betray the readers of the source language as well as the target language. Now, Mahesh Dattani, a great dramatist, says when he talks about 7 steps around the fire in his play, he says an Indian audience would instantly connect the play to marriage. But what about the foreign ones? Dattani replies, text within the storyline, other cultures like Avarakkai Sambar, but they also need to make the effort. If we can learn and look up French and English words thrown at us, they should also look it up. So, if we can understand English language, English culture, being Indian, other people from other cultures also need to understand Hindi and regional languages and the culture when the text is translated into target language. Radhakrishnan has aptly said in his preface to the translation of Bhagavad Gita, a translation to serve its purpose must be as clear as its substance will permit. It must be readable without being shallow, modern without being unsympathetic. The translator's anxiety is to render the thought, but he cannot convey the spirit fully. Now, what happens? uh, as the translator is not able to find suitable words for the translation, the translator is also being confused. And in the process of translation, the translator had to keep certain things in mind. Now, when Deepa Mehta has translated Bapsi Sidhwaj Cracking India into film, I mean, it was a completely different exercise because the textual version is being translated into celluloid version. So Deepa Mehta has to see that how to translate a English text into a film. When Deepa Mehta translated the film, she could not translate it into English because she thought that the text is about partition of India. And if she translates the film into English, then the working class people who are not used to speaking English in their everyday life will not be able to understand and she will not be able to retain originality. And that's why she translated it into Hindi and she made the film Earth 1947. When Mahesh Dattani translated his radio play into a stage play, he felt that translating a play into a film is also a very difficult task, and therefore he feels that it is better to write original film script. The translation involves transformation as well as renovation. No single formula holds good for the same translator for all occasions. Hence, it is said that to keep the tenor of the original in an alien language, some compromises are necessary. When Dante said that nothing which the muses have touched can be carried over to another tongue that looks flavor and harmony, or about in a when the song of a film is transferred, soul of a poem is transferred from one language into another. So it is not always possible for the translator to make his translation look like an original text, original to the reader of the target language, and that's why Susan Besnet, a renowned pioneer of translation studies, says that through the centuries, there had been debate as to how faithful a translator ought to be and faithful to whom. Should the translator be faithful to the author or be faithful
helpful to those who cannot read the original language. I think translation is all about negotiating the world of the original author and the world of the reader. So, from this discussion, it can be easily concluded that the translator communicates to the reader of the target language each of her own interpretation of the original text, and if reader response theory is considered, then translators translating the same text can differ in their interpretation and resultantly in their translation speed. Therefore, what matters is whether the translated text is readable or not, whether it evokes spontaneous response or not, whether the translator has been able to say the maximum, suggest maximum of what the author original text wants to say and suggest or not. Readers of target language and author of the original text also need the standard fact that there are various factors responsible for translations not being 100% up to date and qualitative. Some can be overcome by the translator and some can't. Therefore, translation is a skill, but at the same time, it is the spirit of the original text up to some extent in many cases. Therefore, it appears as an enigma to the readers of the target language and the author of the source language, perhaps too. Thank you, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से पेपर प्रस्तुत किया और अनुवाद और फिल्म को जोड़ करके आपने बहुत अच्छे से पेपर प्रस्तुत किया। अब मैं अगले पेपर प्रस्तुतकर्ता के रूप में किरण अय्यर जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी हैं कोचीन, केरल में। आपका पेपर प्रस्तुति का विषय है केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद की चुनौतियाँ। किरण अय्यर जी। नमस्ते मैडम, मेरा नाम किरण अय्यर है। जैसा कि किरण अय्यर जी, एक सेकंड, आपके पेपर प्रस्तुत करने से पहले मैं बता दूं कि चारू माथुर मैम जुड़ चुकी है हमारे साथ और हमारे साथ विमलेश कांति वर्मा जी वरिष्ठ भाषा वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का मैम बहुत बहुत स्वागत, आभार। आप किरण अय्यर जी पेपर प्रस्तुत कर सकते, करिए। सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। तो जैसा कि कहा जाता है कि घर में अगर बहुत अधिक बर्तन होते हैं तो वे खड़खड़ाहट तो करते ही हैं। तो वैसी ही परिस्थिति होती है भाषा के क्षेत्र में किसी देश की। तो भाषा के संबंध में भी देश की यही स्थिति है। इसके कारण भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका, केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी भाषा, जिसे स्वतंत्रता के पूर्व एकता की सीढ़ी कहा जाता था, उसे स्वतंत्रता के पश्चात कई विरोधों का सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि हर जगह दक्षिण भारत में विशेषकर हिंदी का कहीं ना कहीं विरोध दिखाई दे ही जाता है। जब से संविधान में, जैसे कि जो 14 सितंबर 1949 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया और अंग्रेजी भी उस राजभाषा के साथ सह राजभाषा के रूप में कार्यरत रही। संविधान के जो भाग 17 है उसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन सभी भारतीय भाषाओं के लिए गौरव का विषय है कि वे उस राज्य की राजभाषाएं हैं, परंतु फिर भी अंग्रेजी जो उस समय से जुड़ी हुई है वह हिंदी से भी अधिक महत्व रखने लगी है कई सरकारी कार्यालयों में। अनुवाद के बारे में यदि कहा जाए तो अनुवाद एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्राचीन काल से ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान होता रहा है। संपूर्ण विश्व ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्विक ग्राम के रूप में जहां जुड़ा हुआ है, तो इस ग्लोबलाइजेशन में भी हिंदी अनुवाद और अन्य भाषाओं के अनुवाद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जब हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया तो उस समय उसे राजभाषा के रूप में सम्मानित करने वाले दक्षिण भारत के महान नेता गोपाल स्वामी अयंगार भी थे, तो वो स्वयं दक्षिण भारतीय थे। तो ऐसी स्थिति में भाषा के संबंध का विरोध होना ही नहीं चाहिए था, परंतु कुछ राजनीतिक लाभों के कारण अभी भी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में जो दर्जा दिए जाने के पश्चात भी इसके विरोध की यहाँ तहाँ घटनाएं आप सबके सामने प्रस्तुत होती ही रहती है। हम सभी जानते हैं कि भारत देश कई वर्षों तक मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल के अंतर्गत रहा है, तो जिसके कारण यहाँ की भाषा में फारसी और अंग्रेजी सहज ही अपना एक महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। यह प्रभाव हम अपने
सरकारी कार्यालयों में भी देख सकते हैं। तो अपनी इस पेपर प्रस्तुति में मैं अपना जो ध्यान है वह केवल केंद्र सरकार के कार्यालयों में जो हिंदी कार्यान्वयन होता है, जो हिंदी अनुवाद का कार्य होता है, उस तक ही सीमित रखना चाहूंगा। अधिकांश कार्यालयों में देखा जाता है कि जो अधिकांश जो कार्य होते हैं वह अंग्रेजी में ही हो जाते हैं। और अगर आप कोई भी पत्र या परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन अगर आप देखते हैं तो उसके अंतिम में केवल एक लाइन लिखा होता है कि हिंदी वर्जन फॉलोस, अर्थात जो हिंदी जो अनुवाद होता है वह बाद में अनुसरण करेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। कई जगहों में केवल अंग्रेजी में ही जो कागजात होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, परिपत्र, सूचनाएं, अधिनियम, वो सभी केवल अंग्रेजी में ही जारी किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो द्विभाषिकता की स्थिति जो बनी हुई है वह अनुवाद के लिए एक प्रकार से तो लाभकर है कि अनुवाद का कार्य किया जाता है, परंतु जो हिंदी कार्यान्वयन जो होता है वह बहुत कुछ पिछड़ जाता है। किसी प्रकार का जो साहित्य होता है वो कार्यालयीन साहित्य होता है, उसमें चार मुख्य जो गुण होते हैं। पहला जो गुण होता है वो निर्वैयक्तिकता होती है, दूसरी होती है तथ्यों की संपूर्णता और स्पष्टता, तीसरी होती है यथासंभव असंदिग्धता, और चौथी होती है वर्णनात्मकता। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि कार्यालयीन साहित्य जो होता है वह तकनीकी, औपचारिक और लिखित होता है। तो जब ये इतनी सारी जो कार्यालयीन साहित्य जो होता है वह इतनी सारी विशेषताओं को अपने समाहित रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसके समक्ष कई चुनौतियां भी उपस्थित होती है। तो उन चुनौतियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर हम केवल जैसे कि अधिकांश न्यायालयों की भाषा लें तो न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही होती है, और किसी भी भ्रम के होने की स्थिति में उसका केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदी अनुवाद होता है वह अंग्रेजी जो मुख्य पाठ होता है उसकी अपेक्षा बहुत कमजोर दिखाई पड़ता है। उसके अतिरिक्त यदि हम अधिकांश अनुवादों की ओर ध्यान दें तो ये सभी अनुवाद हमें कुछ बनावटी से लगते हैं, क्योंकि कई बार प्रायः वे अंग्रेजी में पहले तो बने होते हैं, उसके पश्चात किसी तरह अनुवादक या अन्य अधिकारियों की सहायता से उसे हिंदी में परिवर्तित किया जाता है या अनुदित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अधिकांशतः अंग्रेजी पाठों को बेहतर मानकर मान लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में जो अनुवादों का जो स्वरूप होता है वो प्रायः उपेक्षा के कारण बनावटी सा प्रतीत होता है। और अगर हम एक और देखा जाए गौर स्तर में जाएँ तो हम देखते हैं कि जब द्विभाषी कागज़ कोई भी किसी अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत होता है, तो अधिकांशतः वह उनमें केवल अंग्रेज़ी को ही महत्व देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक उपेक्षा का वातावरण निर्मित हो जाता है, और अनुवादों का स्तर भी धीरे-धीरे उस उपेक्षा के कारण गिरने लगता है। अधिकांश जो केंद्र सरकार कार्यालय होते हैं, उनमें तकनीकी कार्यालय भी तकनीकी कामकाज भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कार्यालयीन जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, उनके अतिरिक्त तकनीकी विषयों के लिए भी अनुवाद की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में यदि तकनीकी विषयों पर अनुवादक की कोई पकड़ नहीं है, या उसे उस संबंध में अधिकांशतः अगर कोई उसे कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, या उसके लिए कोई मुख्य कार्यशालाएँ नहीं चलाई गई हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अनुवादक होता है वह अपने अनुवाद कार्य को, तकनीकी विषय से संबंधित अनुवाद कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, और जो अनुदित जो पाठ होता है उसका स्वरूप मौलिक भी प्रतीत नहीं होता। तो ऐसे स्थिति में भी हिंदी अनुवाद को पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है। अ, जैसे कि मैं दक्षिण भारत क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि उदाहरण लिया जाए कि केरल में या कर्नाटक में, तो जो सामान्य जन होते हैं, जैसे कई सरकारी कार्यालय ऐसे होते हैं, जहाँ उनका जो कार्य व्यवहार होता है वह सामान्य जनता से होता है, तो जो कि ना तो अंग्रेजी जानती है और ना ही हिंदी जान पाती है। तो ऐसी स्थिति में जो अनुवाद अगर किया भी जाए अंग्रेजी से हिंदी, तो वह उनके लिए किसी प्रकार का कोई लाभप्रद परिणाम नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी एक अनुवाद पिछड़ जाता है। इसके पश्चात अगर हम पाएँगे कि कई ऐसे शब्द होते हैं, जैसे फ़ाइल के लिए फ़ाइल ही प्रयोग किया जाए, या फ़ाइल के लिए मिसिल शब्द का प्रयोग किया जाए, तो ऐसी स्थिति में कई सारे शब्दों के लिए एकरूपता के बारे में बहुत संदेह उत्पन्न हो जाता है। हमारे जो सीएसटीटी जो सेंटर है, जिसकी सहायता से बहुत अधिक शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में अनुदित किया गया है। उसके पश्चात भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शब्दों की एकरूपता के बारे में बहुत ही संदेह होता है कि किस शब्द का हम प्रयोग करें। तो ऐसी स्थिति में यदि जब तक उन शब्दों का एक मानक रूप प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक पाठक और यहाँ तक अनुवादक के मन में भी एकरूपता के प्रति भ्रम पैदा होता है, जो कि अनुवाद के क्षेत्र में उसकी कमी बन जाती है। कई बार कार्यालयों में ऐसा होता है कि अंग्रेजी जो पत्र बनाए जाते हैं उनमें तो अधिकारी बहुत अधिक समय लेता है, परंतु जब उसके हिंदी अनुवाद की बारी आती है
तो उन्हें लगता है कि ये केवल एक मशीन की भांति है। जैसे हम गूगल ट्रांसलेशन में अगर कोई भी अंग्रेजी पाठ डालते हैं, सीधे कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो वह तुरंत बहुत जल्दी ही एक अनुदित पाठ प्रस्तुत करता है। ठीक यही अपेक्षा एक अनुवादक से भी की जाती है, और अंग्रेजी पाठ जिसे तैयार करने में बहुत ही समय लिया गया होता है, उससे सीधे ही बहुत कम समय में उसे हिंदी में करके देने के लिए कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अनुवाद का औचित्य लगभग क्षीण सा हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में सीधे अनुवाद करना ही बहुत मुश्किल होता है, और जल्दबाजी में किया गया जो अनुवाद होता भी है, वह गुणवत्ता में बहुत अधिक कम हो जाता है। अधिकांश सरकारी कार्यालय जो केंद्र सरकार के होते हैं, उनमें से ऐसी परिस्थिति होती है कि सामान्य स्टाफ तो बहुत अधिक होते हैं, परंतु हिंदी राजभाषा कर्मी जो होते हैं वह बहुत कम होते हैं। तो अनुवाद कार्य तो बहुत अधिक हो जाता है, परंतु अनुवादक बहुत कम होते हैं। तो ऐसे स्थिति में परिणाम यह होता है कि अनुवाद या तो नहीं हो पाता है, या तो बहुत जल्दबाजी के किए जाने के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। कई सारे अनुवादक ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उन्हें ठीक प्रकार से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में वे सरकारी कार्यालयों में जो कार्य होता है उससे अवगत ना हो पाने के कारण ठीक प्रकार से अनुवाद नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि राजभाषा की नीति के अनुसार अधिकांश कर्मचारियों और अधिकारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भी अधिकांशतः हिंदी में कार्य नहीं करते हैं। तो इसके लिए वह जो हिंदी का जो कोई भी कार्य छोटा छोटा जैसे कि अपना नाम अगर हो, उसको भी अगर अंग्रेजी में लिखना हो या अंग्रेजी से हिंदी में लिखना हो, तो उसके लिए भी राजभाषा कर्मी के पास ही जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर छोटे बड़े काम के लिए राजभाषा कर्मी का ही मुंह ताकना या उसके प्रति उसकी उसकी अपेक्षा करना ही बहुत गलत होगा, क्योंकि उन्हें खुद भी अपने कार्य को करना चाहिए जो हिंदी संबंधित होता है। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि जो मशीन अनुवाद जो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल ट्रांसलेट की सहायता से, अन्य अनुवादक टूल जो होते हैं, उपकरण होते हैं, उनकी सहायता से जो अनुवाद किया जाता है, उसमें भी बहुत सारी कमियां होती है। सीधे अगर उसको कॉपी पेस्ट किया जाए और वहां से उठाकर सीधे अपने हिंदी अनुवाद में ले लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत सारी गलतियां होने की संभावनाएं होती है। तो इसका भी अनुवादक को अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पारिभाषिक शब्दावली जो होती है वह अधिकांश संस्कृत युक्त होती है, जिसके कारण वह दुरूह सी प्रतीत होने लगती है। तो ऐसे स्थिति में दुरूहता के कारण भी अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी उसे त्याग से देते हैं। वह सीधे ही प्रश्न पूछते हैं कि अगर अंग्रेजी में काम करना इतना आसान है, तो फिर हम हिंदी में काम क्यों करें? तो जैसे मैंने बहुत सारे कारण बताए, इस प्रकार अनेक चुनौतियां हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो इन चुनौतियों का जैसे कि अगर हमको सामना भी करना है, तो उसके लिए हमें जहां तक हो सके जो जो कागजात तैयार किए जाते हैं वो द्विभाषी होने चाहिए एक साथ। जितना समय अंग्रेजी को मिलता है उतना समय हिंदी को भी मिलना चाहिए। अनुवादकों से मेरा ये यही यही उनसे बात होगी कि वे अनुवादक जिस क्षेत्र में भी कार्यरत है, उस क्षेत्र में अनुवाद करने से पूर्व उसके कार्यशैली से अच्छी तरह से परिचित हों। साथ ही तकनीकी अनुवाद के क्षेत्र में उन्हें अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और जो अभिव्यक्तियाँ जो होती है, जो हिंदी अनुवाद के लिए होती हैं, भिन्न-भिन्न शब्द होते हैं, उनमें जहाँ तक हो सके एक मानक प्रयोग किया जाए, जिससे एकरूपता बनी रहेगी। साथ ही हिंदी प्रशिक्षणों में जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, वे सहभागिता लें, वे उन्हें उनमें भाग लें, और वो प्रशिक्षण लेने के पश्चात अधिक से अधिक अपना काम हिंदी में करें, जिससे अनुवाद जो कार्य होता है, वह सरल और सुयोग्य बन पाए। उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि हम सभी को हिंदी अनुवाद और उस हिंदी के प्रति एक उदासीनता का जो भाव है, वह हटाना होगा, क्योंकि यह भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा तो बन नहीं पाए, परंतु अधिकांशतः जो सरकारी कार्यालय होते हैं, वहाँ राजभाषा का उपयोग किया जाता है। यह केवल औपचारिक नहीं होना चाहिए, यह सभी को राजभाषा के प्रयोग करते हुए अनुवाद का जो होता है, वह उसका अनुवाद को उचित महत्व देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अनुवाद का कार्य होता है, जिसे केवल एक मशीनी कार्य, एक सरल कार्य समझ लिया जाता है, वह एक सरल कार्य नहीं है। अभी तो उसमें बहुत अधिक ज्ञान-विज्ञान की बातें होती है, उसमें समझ की बातें होती हैं, उसमें शिक्षा और शिक्षा की भावना होती है। तो ऐसे कई तरीके से स्वप्रेरणा के ज़रिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को हिंदी जो कार्यान्वयन होता है और साथ ही अनुवाद का जो कार्य होता है, उसे महत्व देना चाहिए। और साथ ही जैसे जब वे अनुवाद को अधिक महत्व देंगे, तो उसी प्रकार से ही केंद्र सरकार कार्यालयों में अनुवाद को महत्व जाने के बाद सभी कार्य सुगमता पूर्वक संचालित किए जा सकते हैं। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत किरण धन्यवाद किरण अय्यर जी।
आपने बहुत अच्छा पेपर प्रस्तुत किया। आपने केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद की चुनौतियों को सामने रखा, जबकि ये खाली केंद्र सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि जितने भी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालयों में जित अनुवाद होते हैं, उन सभी के सामने यही चुनौतियाँ आती होगी। और जितनी भी भाषाओं में, चाहे हिंदी, इंग्लिश या कि बाकी कोई और भी भाषा है, उसमें भी अगर कार्यालय अनुवाद होता है तो उनमें भी यही समस्याएँ सामने आएगी। बहुत अच्छा आपने पेपर प्रस्तुत किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अब अगले पेपर प्रस्तुता के रूप में जिग्नेश कुमार को आमंत्रित करना चाहूँगी। आप पीएचडी स्कॉलर हैं, शिक्षण महाविद्यालय गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद से। गुड आफ्टरनून मैडम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है, आप पेपर प्रस्तुत करें। थैंक यू। जिग्नेश, सब्जेक्ट है व्यवहारिक अनुवाद की चुनौतियां। उसमें मैडम जो मेट की एग्जाम होती है गुजरात में एचमेट की एग्जाम के बाद प्रिंसिपल की नियुक्त अपॉइंट होती है, तो उनको क्या दिक्कत आती है, उनको क्या चुनौतियां है, और अभी प्रिंसिपल है वो स्कूल में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में और उसमें क्या क्या उनको दिक्कत आती है उसके बारे में मैंने ये पेपर बनाया है। टाइटल है स्टडी ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स द HMAT examination of principal who have joined the HMAT examination in the secondary school of Rajkot district. Extract. Examination is the main basis for measuring various abilities from ancient times of the modern times. Principal have different concepts towards students and exams. With this objective in the mind, researcher conduct the HMAT examination in the secondary school and conduct a view on the HMAT examination of the test the principals. For this, the researcher selected the principals of the secondary school in the Rajkot district for the manuscript test. 110 principals were selected for the final trial, including 75 males and 75 female principals. The researcher questioned the cause of survival type, passed through the entire stage of device design and certification, formulated the criteria of vision for secondary school principals. The T-test was used for the standard score of the respective measures. The reliability and accuracy of the criteria of perspective remained high. MS Excel was used for the mathematic calculation. Actually, an area were found to be equivalent when studying the criteria of the perspective. Introduction. A person in the creator of his own destiny. It can be said from the statement that we can achieve the success we want by working hard ourselves. Today's 21st century in a competitive age in which day by day everyone has to go through some or the other big or small competition. Only those who can survive in the competition get the proof of success, and those who cannot survive in the competition have to be fear the thrones of the failure. Today, there is a competition in every field, be it for jobs or sports, even the business sector. They cannot be excluded from the competition. Competition is essential in the field of doctor, engineers, lawyer, etc. In the same way, the most important aspect of competition is seen in the world of education. If only a few children reach the pinnacle of success in the various competitive examinations that take place in the world of education, thereby should their principals who are involved in the overall development of the students be left out of the competitive examination. Problem statement: study of the attitude towards the HMAT
examination of the principals who have joined the HMAT examination in the secondary school of Rajkot district. Research objective: first, to formulate prospective criteria regarding HMAT examination for the principal who have joined the HMAT examination in secondary school of Gujarat state. Examine the effect of race on the right of the criteria on approach taken for the HMAT examination of secondary school principals. Third, examine the effect of area on the right of the approach criteria designed for HMAT examination for secondary school principals. For examine the effect of cast on the right of the approach criteria for HMAT examination for secondary school principals. Examine the effect of educational qualification on the right of the approach criteria designed for HMAT examination for secondary school principals. 6. Examine the effect of material status of the right of approach criteria for HMAT examination for secondary school principals. Research hypotheses for the 6 include: first, there will be no meaningful difference between the weight obtained by male and female principals in the secondary school in the vision criteria. Two, there will be a meaningful difference between the weights obtained by the principals of urban and rural area in the secondary school in the vision criteria. Third, reserve on not reserved principals in secondary school in prescriptive criteria. There will be no significant difference between the average obtained. For there will be no meaningful difference between the grades obtained by the undergraduate and postgraduate principals in the secondary school in the vision criteria. 5. There will be no meaningful difference between the grades obtained by the married and unmarried principals in the secondary school the vision criteria. 6. There will be no meaningful difference between the grades obtained by the district principals in the point of view criteria in the secondary school. Worldwide and sample selection in the state of Gujarat, the Gujarat Medium School of Rajkot district. There was a wide range of research done by the principals who appeared for the HMAT examination and for the selection of the sample. Research randomly selected the principal who appeared for the HMAT examination and select the 75 male and 35 female principals. Method of research. The survey method involves selection samples from large or small world, obtain information from the according to the study objective through questionnaire or interview. Analyze the information obtaining conclusion about the world, etc. Survey research method was adopt the present research tools. In the present study to now the perspective of estimate examination for the principal who have joined estimate examination in secondary school. Research expert review the process and give the necessary advice and guidance. Each statement will be given a score as per the student multiplication key and as per prescribed scale. Moreover, examination and examination poster analysis was done. The case was certified, and then the secondary principals of Rajkot district were used to now the SMAT examination construct perspective. Analysis the interpretation of the information, writer obtain the vision criteria for the demonstration characters were calculated based on feedback received for the statement or information obtained in the patient research. Its average pronouns, median, pronunciation division or discovered by the statistical application on it. And the t-value from the difference according to the variable
and interpret it. MXL will be used and arithmetic calculation for this. And I have a anti statement for the include in the hypothesis. The with estimate examination student teachers and not able to present the question in the organized manner. Uh, Three types the given the answer: agree, disagree, neutral. Agree is 77%, disagree 6.7%, and neutral 16.3%. There is second statement. There is lack of proper technical knowledge among spent principals during the assessment examination. Agree 76.7%, disagree 6, neutral 17%. Third statement, evaluation in assessment examination is not done actually and precisely. 75% agree, 8.7 disagree, 16% neutral. Fourth statement, value expand examination less place in uh, expand principles. Agree 74%, disagree 17, neutral 80. Five statement estimate examination makes it difficult for principals to impart knowledge of subject. Agree 60%, 25 disagree, and 15 neutral. Six statement: the problem of network in remote areas has become a obstacle in the estimate examination. 97 agree and 3 neutral, 0 disagree. 7 statement: due to poor economical conditions, student lack uh, uh, mobile or other ICT equipment. It is 6% agree, 2% disagree, 7 neutral. 8 principals lack the right perspective on the concept of estimate examination. 35 agree, 26 disagree, 38 neutral. 9 statement: principals cannot use the appropriate skill and method through estimate examination and the teaching. 62 agree, 22 disagree, 15 neutral. Statement: estimate examination just a concept to complete the course. 65 agree, 18 disagree, 16 neutral. 11 statement: equality of principles in seeing the estimate examination. 37 agree, 0% disagree, 13 neutral. The concept of estimate examination has the potential to lead to bad habits and disorders in principles. 46 agree, 24 disagree, 29 neutral. 13 statement: estimate examination has only become a part of government policy rules. 66 agree, 15 disagree, 18 neutral. 14 statement: estimate examination allows teachers and principal to use ICT tools more effectively. 55 agree, 14 disagree, 13 neutral. 15 statement: estimate examination is able to make up for the loss of class education. 70% agree, 61 disagree, 21 neutral. 16 statement: estimate examination is likely to be more beneficial in the higher education. 53 agree, 28 disagree, 18 neutral. 17 statement: estimate examination learning lacks a sense of cooperation between the principals and the teachers. 84 agree, 6 disagree, 9.3 neutral. 18 statement: uh, parents feel जिग्नेश जी आप अपने पेपर को सम अप करें. Madam, sorry. Findings: male principals each secondary school had a higher view of average height of the female. The point of view of average weight obtained by the urban principals and rural principal in secondary school weight similar. The point of view of average weight obtained was the higher
than that of reserved principals and non-reserved principal in secondary school. Graduate principal, his secondary school graduate principal had overview of average weight obtained subject principals. Merit principal, his secondary school had higher view of average weight than unmarried principals. I have completed my research paper. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद जिग्नेश जी। आपने अपने टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया। स्टडी ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स द एचमेट एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स हु हैव ज्वाइंड द एचमेट एग्जामिनेशन इन द सेकेंडरी स्कूल ऑफ राजकोट डिस्ट्रिक्ट। आपने बहुत अच्छे से इस पे बात की, आपने डेटा कलेक्शन बहुत अच्छे से किया था। वास्तव में ये एक रिसर्च पेपर लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। अब मैं इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय चारू माथुर देव मैम जी को। आप बहुत ही अच्छे अनुवादक हैं, आमंत्रित हैं डॉक्टर चारू माथुर देव मैम जी। मैम, यदि आप अपने वक्तव्य से पहले अगर इन पेपर प्रस्तुतकर्ता को अगर कुछ आप सुझाव या कुछ और उनको बताना चाहते तो आप बता सकते हैं मैम, जिससे इन पेपर प्रस्तुतकर्ता का फायदा हो जाए मैम। ठीक है, तो मैम आप इनको बता सकते हैं, फिर आप अपने वक्तव्य जारी कर सकते हैं। आमंत्रित हैं डॉक्टर चारू माथुर मैम जी। नमस्कार आदरणीय सभी सदस्यों को और पेपर प्रेजेंटर्स को। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपका एक सुधार करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ चारू माथुर देव हूँ, तो आप प्लीज मुझे इसी नाम से बुलाएं। कोई बात नहीं। तो क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर सब डॉक्टर हैं, इन सब डॉक्टर्स के बीच में मैं एक अकेली नॉन डॉक्टर हूँ, तो ये गलती होना स्वाभाविक है। आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करती हूँ। यहाँ पर आई जितने मैं थोड़ा देर से जुड़ी थी, इसलिए एक पेपर चल रहा था जब मैंने यहाँ पर मैं शामिल हुई। तो वो पेपर जितने भी मैंने अब तक सुने हैं वो सब ने बहुत अच्छे दिए। खासतौर से किरण नायर जी का जो पेपर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने सचमुच व्यावहारिक अनुवाद की चुनौतियां बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत करी। यहाँ पर थोड़ा मैं उनकी एक इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनका ये कहना कि मतलब अधिकारी लोग अगर अपना काम करें तो हमें अनुवाद करने का काम का समय मिल जाएगा। हो सकता है उनकी बात अपनी जगह सही हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर अधिकारी लोग अनुवाद का काम खुद ही कर लेंगे तो फिर राजभाषा में के लिए और अनुवादकों की फिर ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि सभी एक्सपर्ट हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अगर ऑफिशियल्स के पास अपने पॉलिसी मेकिंग के इतने सारे काम होते हैं, कंट्रोलिंग का, डिसीजन पावर्स का, कि उसके बीच में ये एक ट्रांसलेशन का काम उनके काम के फ्लो में थोड़ा सा एक हर्डल डालता है। तो ऐसे केस में अनुवादक उनके लिए सहायक और उनके मददगार साबित होते हैं। तो हमें उनके दिए हुए काम को, ठीक है कभी कभी काम बढ़ भी जाता है, अगर सकारात्मक रूप में लेकर करेंगे तो हमारे भी जो योग्यता है वो निखर कर आएगी और हमारे अधिकारियों के साथ संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने अपने पेपर में प्रेजेंट किया वो बहुत कुछ उन सब बातों से मिलता जुलता है जो मैंने अपने लिए एक थोड़ा सा मैटर तैयार करा है उससे है। तो इससे लगता है कि बहुत कुछ उन्होंने ये पेपर उनके अपने अनुभव और जो कुछ भी इस समय अनुवाद जगत में हो रहा है उसकी बेस पर उन्होंने लिखा है। तो मैं किरण जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके पेपर के लिए। और अभी मिस्टर जिग्नेश ने जो पेपर प्रेजेंट किया वो थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से सुनाई कम दिया था क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत थी, लेकिन जितना भी मुझे समझ में आया वो आपने प्रियंका बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने डाटा कलेक्शन बहुत अच्छा किया है और अपने प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी दी है। बस उसके लिए बस एक सुझाव मेरा यही है कि अगर आप डाटा दे रहे हैं और एग्री और डिसएग्री शो कर रहे हैं तो वो अगर आप बोल के बोलेंगे तो वो शायद सुनने वालों की समझ में इतना अच्छे से नहीं आएगा। अगर आप उसको थोड़ा सा ग्राफिक रूप में प्रेजेंट करते, मतलब सारी नहीं तो लेकिन जो भी कुछ आपका डाटा था और उसका रिजल्ट था उसकी अगर आप पीपीटी तैयार कर लेते, 3-4 तैयार कर लेते, तो वो आपके पेपर को इम्पैक्ट प्रदान करता, आपको उसको थोड़ा सा पावर देता। बाकी आपने जो कुछ भी प्रेजेंटेशन थी वो बहुत अच्छी दी, तो उसमें तो कोई कमी ही नहीं थी किसी तरह की। तो मैं इसके बाद थोड़ा सा अपना मैंने कुछ मटेरियल तैयार करा है। व्यवहारिक अनुवाद की चुनौतियां के विषय के अंतर्गत मैंने मशीनी अनुवाद
को लेके थोड़े से अपने विचार रखना चाहती हूँ मैं कि मशीनी अनुवाद इस समय हमारा अनुवाद का एक दूसरा जरिया बना हुआ है। इसमें मशीनी अनुवाद में आपका, जैसे अभी मिस्टर किरण ने नाम लिया गूगल ट्रांसलेशन का, शायद गूगल ट्रांसलेशन का नाम लिया, और इसके साथ ही वो तो है ही, उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स में इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़े से सॉफ्टवेयर बनाए हैं, वो भी हैं। तो वो सब हमारा जो है मशीनी अनुवाद में शामिल होता है। क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी मैम, मैं शेयर कर देती हूँ मैम, एक सेकंड रुकिए मैम। मैम आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना? हाँ जी। जी जी मैम, एक सेकंड मैम, अलाउ कर देती हूँ मैं। हाँ। यस मैम, स्क्रीन शो हो रही है। जी, तो मेरा पेपर का शीर्षक मैंने दिया है मशीनी अनुवाद कितना उपयोगी और कितना सार्थक। तो मशीनी अनुवाद कि अगर हम इतिहास के रूप में जाएं, इतिहास के हमारा ये शुरू कहाँ से हुआ, तो ये बड़ी एक छोटी सी घटना थी जो हमारे लिए छोटी है, लेकिन उस समय शायद एक बहुत बड़ी थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय क्योंकि ये विश्व युद्ध था तो बहुत सारे देश इसमें शामिल थे, बहुत सारे देशों के सैनिक शामिल थे। तो उन सैनिकों में किस तरह से कम्युनिकेशन हो, ये उस समय एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आया कि एक सैनिक को दूसरे सैनिक की भाषा नहीं पता थी, इसलिए उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए कुछ कोड ब्रेकर्स को अपॉइंट किया गया। उन कोड ब्रेकर्स ने कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस तैयार करी, जिसमें कि इंस्टेंटली जो कुछ भी हमारा कम्युनिकेशन उस समय जरूरी था वो कम्युनिकेट किया जाए। जब ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस जो कुछ भी उस टाइम उनका डेवलपमेंट हुई थी, जो इक्विपमेंट्स उन्होंने डेवलप किए थे, वो लिंग्विस्टिक्स ने और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने उनको इमीडिएटली ट्रांसलेशन के लिए अडॉप्ट कर लिया, और वहां से हमारा मशीन ट्रांसलेशन जो था वो शुरू हुआ। लेकिन ये मशीन ट्रांसलेशन हमारा कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना हमारे इस समय एक हर्डल बना हुआ है, तो ये देखने के लिए इससे सबसे पहले मैम की आवाज शायद नहीं आ रही है ना? हाँ जी, नहीं आ रही। हाँ मैम की शायद वो हो गई वीडियो है। भी नहीं, हाँ वीडियो हाँ भी हाँ नहीं। हाँ। तो चलिए, जब मैम आएंगी तो फिर हम उनको दोबारा ऐड कर देंगे। तो मैं अगले वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर हरीश कुमार सेठी सर जी को। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपकी अनेक संपादित ग्रंथों
और देश के विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में अनेक शोध आलेख एवं समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। सर एक अच्छे अनुवादक के साथ साथ बहुत अच्छे संपादक भी हैं। अभी आप सर भारतीय अनुवाद परिषद द्वारा प्रकाशित अनुवाद कला विज्ञान और शिल्प की त्रैमासिक शोध पत्रिका अनुवाद के अवैतनिक संपादक के रूप में कार्यरत हैं। आमंत्रित है हरीश कुमार सेठी जी। धन्यवाद प्रियंका जी। ये जो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहने तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो जाती है। जैसे मशीनी अनुवाद पे बात कर रही थी चारू जी, और मशीन ही धोखा देने की स्थिति में आ गई, तो अभी मेरी भी बैटरी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। आदरणीय कांति वर्मा सर और का एक मिनट जरा, मैं कोई फोन बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ जी सर डू नॉट डिस्टर्ब कर दीजिए उसको। किस में आएगा सर? नीचे से अगर आप करेंगे या ऊपर से, उसमें ऐप ऐसे बना होता है सर, डू नॉट डिस्टर्ब लिखा रहता है, तो उसमें कॉल नहीं आएगी सर। अच्छा, ये मुझे भी आइडिया नहीं है। टेक्नोलॉजी में हम भी अब तो वरिष्ठ वाली कैटेगरी में आ गए, तो दिमाग भी जो है ना टेक्नो फ्रेंडली उतना नहीं रह गया है। तो मैं जो ये कह रहा था कि व्यवहारिक जो अनुवाद की जो चुनौतियां हैं उस पर ये दिशा निर्देश देने वाला भी एक तरह का है। और उसका कारण ये है कि जो समस्याएं, जो दिशा निर्देश इस सेमिनार के जरिए मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक श्रोतागण हैं उनको लिए लाभदायक होगा। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसके व्यवहार वाले पक्ष से ही बात रखते हुए, जब हम अनुवाद शब्द की बात करते हैं तो अनुवाद मोटे तौर पे हम ये मान लेते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में तथ्य की प्रस्तुति है। हालांकि ये जो है इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, या जिसको अंतरभाषिक अनुवाद कहा जाता है, उसी श्रेणी में आता है और इसी को ही हम ट्रांसलेशन प्रॉपर कहते हैं। इसके अलावा अंतरभाषिक अनुवाद भी, यानी इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन और इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन की भी बात रोमन जैकोब्सन ने की है। पर ट्रांसलेशन में जब हम ट्रांसलेशन प्रॉपर की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। तो ये जो एक से दूसरी भाषा में प्रस्तुतिकरण है, ये तो अपने आप में ही व्यवहारिक कार्य है, व्यवहार से संबंधित है। और ये जो प्रक्रिया है, ये दो भाषाओं के बीच में घटित होने वाली व्यवहारिक प्रक्रिया है। इसके मूल में अगर हम जाएं, इस व्यवहारिक प्रक्रिया के, तो मूल जो है वो ये बताता है कि अनुवाद को हम दो दृष्टियों से देख के चलते हैं। या तो उसकी उपयोगिता की दृष्टि से, यानी उसकी यूटिलिटी रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और या फिर अपने साहित्य को समृद्ध करने के लिए कलात्मक रूप देते हुए अपनी भाषा में साहित्य की प्रस्तुति करना। अब यहीं पे ये डिमार्केशन जो है क्लियर हो जाता है कि जब हम उपयोगिता की दृष्टि से अनुवाद को देख रहे हैं तो वह बता रहा है कि वो ज्ञान विज्ञान या सूचना साहित्य जो है उसके अनुवाद से संबंधित है। और कलात्मकता का, सौंदर्य का जो पक्ष है वो स्वाभाविक है कि सृजनात्मक साहित्य से जुड़ा हुआ है। और सृजनात्मक साहित्य में हमें जो एक आनंद की प्राप्ति होती है, रसास्वादन होता है, वो जिसे कहा जाए शब्दातीत है, और उससे हमें मानसिक सुख मिलता है। और इस मानसिक सुख की प्राप्ति में कलात्मकता जो है सार्थक सिद्ध होती है। अब इस प्रक्रिया में, यानी सृजनात्मक साहित्य में ही देखें तो कलात्मकता लाने के लिए जिस तरह की स्वतंत्रता
अनुवादक को होती है वो व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो उपयोगितावादी दृष्टि से जो अनुवाद कर्म किया जा रहा है, चाहे वो ज्ञान विज्ञान का साहित्य हो या फिर जैसे अभी हमारे जो है किरण अय्यर जी ने प्रशासनिक अनुवाद की ही बात की है, उस संदर्भ में भी देखें तो वो क्या है कि सूचनात्मक साहित्य है या प्रशासन से संबंधित है, प्रयोजन मूलक पक्ष वाला है भाषा का। तो अगर प्रयोजन मूलक संदर्भों में देखें तो वहां उपयोगिता का पक्ष ज्यादा अहमियत रखता है, जबकि क्रिएटिव ट्रांसलेशन में हम तो ये कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिएशन की बात भी होती है, रिक्रिएशन की बात होती है, जहां पर आप जो है अनुवादक पूरी स्वतंत्रता बरतता है, जो चाहे जोड़ना छोड़ना वो सब चीजें भी चलती हैं। ये पूरा एक अलग विषय है, इस पर मैं आपसे बहुत बात नहीं करना चाहता हूँ। तो मूल जो मेरा विषय आता है, हम देखें तो अनुवाद जो व्यवहारिक कर्म है, उस व्यवहारिक कर्म के संदर्भ में ही हमें आगे चलकर यानी कि व्यवहार से ही सिद्धांत उपजते हुए नजर आते हैं। अभी जैसे मैं आपसे भी चर्चा कर रहा हूं, तो अगर हम कोई सैद्धांतिक दृष्टि प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका आधार अनुवाद व्यवहार है। तो अनुवाद सिद्धांत का जो भवन हम ये कहें कि किस मतलब नींव पर खड़ा हुआ है, तो व्यवहार की नींव पर। अब ये व्यवहार कार्य जो है देखें तो सिर्फ भाषाई कर्म नहीं है, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ही कथ्य का प्रस्तुतिकरण नहीं है। खासतौर पर सृजनात्मक साहित्य में हम देखते हैं कि सिर्फ भाषा का अंतरण ही नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ संस्कृति का संचरण भी हो रहा है, यानी कि जिस भाषा से संबंधित सामग्री है उस भाषा की संस्कृति के तत्व, उसके जो संदर्भ जो है वो भी लक्ष्य भाषा में आ रहे हैं। तो भाषा का संचरण, भाषा के साथ जो है संस्कृति का जो संचरण हो रहा है, अनुवादक को उसको भी देखना समझना होता है। तो कुल मिला के देखें तो जो व्यवहारिक चुनौतियां अनुवादक के सामने उभर कर आती हैं मोटे तौर पे ही, तो वो है भाषा संबंधी चुनौतियां या फिर सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ी हुई। इसी का एक और अगर आगे आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पाठ की प्रकृति से संबंधित भी हो जाती हैं, क्योंकि पाठ खासतौर पे जो फंक्शनल संदर्भों में जो बात की जाए तो वहां पर अनुवादक को पाठ की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उपयोगितावादी दृष्टि भले ही रह रही हो, लेकिन उसके साथ साथ पाठ की प्रकृति को भी केंद्र में रखकर चलना पड़ता है। यहाँ थोड़ी सी बात मैं करूँ भाषिक संदर्भों में ही, तो भाषा में ही हम देखते हैं कि स्रोत भाषा की जो संरचना परक जो है उसके विशिष्ट है, अनुवादक को उसको ध्यान में रखना होता है, उसके व्याकरणिक पक्षों की तरफ जो है पूरा जो है ध्यान केंद्रित करना होता है, और उसके साथ साथ जो अर्थ संप्रेषित किया जा रहा है भाषा के माध्यम से, स्रोत भाषा के माध्यम से, उस अर्थ को ग्रहण करना और उसको जो है लक्ष्य भाषा में संप्रेषित करना, यह भी चुनौतीपूर्ण है। और इसके साथ साथ ही भाषिक संदर्भ में जो मोटे तौर पे बात करें तो वो है अभिव्यक्ति का पक्ष भी, यानी शैली का पक्ष। पाश्चात्य अनुवाद चिंतक यूजीन ए नाइडा ने अनुवाद के संदर्भ में यही बात कही है कि अनुवाद करते समय अनुवादक इक्विलेंस को जो है ध्यान में रखता है, समतुल्यता की तरफ जो है चलता है, यानी कि जो सोर्स टेक्स्ट में कहा गया उसको लक्ष्य भाषा में भी समतुल्य प्रस्तुतिकरण करता है। और ये समतुल्यता कोशिश ये होती है अनुवादक की कि कथ्य के स्तर पर तो हो ही, यानी मैसेज के लेवल पर तो हो, मैसेज के साथ साथ जो है उसके अभिव्यक्ति का पक्ष भी, जो शैली का जो पक्ष है उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, इक्वलेंस वहां भी होनी चाहिए। पर ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अनुवादक जो है इन दोनों कसौटियों को एक तरह से मानदंडों को आधार बनाकर अगर अनुवाद करने लगे तो वो लगभग असंभव हो जाता है, उसको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो उस स्थिति में नाइडा ने ये कहा है कि शैली के संदर्भ में तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बनती है, लेकिन जहां तक हो सके कथ्य के संदर्भ में ध्यान रखने की बात करते हैं। अब जब हम कथ्य की बात कर रहे हैं तो संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो शब्दों के स्तर पे देखिएगा, ध्वन्यात्मक आपको अंतर मिलेंगे, शब्दों के स्तर पे हमें जो है पर्याय खोजने की भी समस्या आती है, और
सही पर्याय का चयन करना भी चुनौतीपूर्ण होता है। ध्वनि की बात करूं तो दो एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे फूको ही है। फूको जो भाषाविद हैं और हमारे चिंतक जो हैं पश्चिम जगत के, अंग्रेजी स्पेलिंग देखें तो आपको FOUCAULT मिलेगा। अब उसको ध्यान में रखिए और आप देखिए हिंदी में हम क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या किया गया कि स्रोत भाषा की जो है ध्वन्यात्मक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कहा गया। इवन आप भारतीय संदर्भ में भी देखिएगा, दक्षिण भारत में जो है जैसे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, लेकिन उसके अंग्रेजी वर्तनी देखेंगे तो THIR से शुरू हो रहा है। और हिंदी में जो है वो हम जो बोल रहे हैं या उसका लिप्यंतरण करते हैं तो त से करते हैं, यानी TI अगर हिंदी वाले शब्द के हिसाब से बने तो TI होना चाहिए। लेकिन ध्वन्यात्मक अंतर दोनों के बीच का, इसको हम जो है अनुवाद करते समय, लिप्यंतरण करते समय ध्यान में रखते हैं तो तभी जो है बेहतर एक तरह से सटीक अनुवाद की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पर्यायों के संदर्भ में भी। तो पर्यायों में भी देखिएगा बड़ी जो है कई बार भाषाई स्तर पे बड़े मजेदार अंतर मिलते हैं। जैसे हम बात करें अतीत शब्द है, हिंदी का अतीत जो है वो तमिल भाषा के संदर्भ में बड़ा अर्थ को बताता है। अब ऐसे ही सड़ना शब्द है तो जल जाने के लिए है, या मतलब जो है जल जाना या कोई हिंदी के संदर्भ में। लेकिन वही पंजाबी में देखें तो सड़ना जो है एक अलग ही ईर्ष्या भाव, जलन वाला भाव जो है उस पर उसको संकेत करता है। बाल जो है अगर उन्हीं को देखें तो कन्नड़ में यही शब्द जो है पूछ के अर्थ को बता रहा है। ऊब शब्द जो है अरुचि के भाव को व्यक्त करता है, लेकिन यही शब्द मराठी में जब इस्तेमाल में लाया जाता है तो ये उष्णता का द्योतक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अगर स्रोत भाषा को शब्द के स्तर पे देखें, रूप जो है स्तर पे शब्दों के रूप में अगर आपको समानता भी मिल रही है तो ये जरूरी नहीं कि वह उसी का पर्याय आपको हिंदी में या लक्ष्य सर भाषा आप में भी वीडियो ऑफ करके रख सकते हैं, उससे आवाज बहुत अच्छे से आ जाएगी सर। नेटवर्क हाँ कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत है। जी जी। तो इस तरह से देखें तो पर्यायों का सही चयन करना ये भी व्यवहारिक समस्या है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब जितने चाहे पर्याय मिल भी रहे हैं उसके बावजूद सेटिस्फाइड नहीं होते तो आपको नया शब्द भी गढ़ना पड़ सकता है। और खास तौर पे नई जो पारिभाषिक शब्दावली, चाहे वो हम जो है कहें कि जो ज्ञानात्मक साहित्य है या सूचना परक साहित्य है, उसके अनुवाद करते समय नई नई पारिभाषिक शब्दावली का भी सामना करना पड़ता है। अभी इन्हीं दिनों का ही देखिए, जो कोरोना काल जो है हम ऐसे हम गुजर रहे हैं, पीछे भी जो है पिछले साल भी रहा और अभी भी। तो इस दौरान जो है नई नई शब्दावली आई है, तो नए शब्द प्रयोग में आने शुरू हुए। उसके लिए क्या हिंदी इक्विवेलेंट्स हमारे पास नहीं थे, तो नतीजा क्या हुआ कि तरह तरह के शब्द जो है गढ़े जाने लगे। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, कहीं कोई जो है कोई सामाजिक दूरी कह रहा है, कोई शारीरिक दूरी कह रहा है, कोई भौगोलिक दूरी कह रहा है, आइसोलेशन शब्द है, लॉकडाउन जैसा शब्द है। ये तरह तरह के जो शब्द मिल रहे हैं, आपको उसका पर्याय अगर मिल भी रहा हो तो ये हो सकता है कि वो सार्थक जो है सिद्ध ना हो पा रहा हो। तो अनुवाद तक को व्यवहारिक संदर्भ में, यानी कि उसकी व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए ही एक तरह से कहा जाए चलना पड़ता है। और इसका मूल अगर हम हिंदी और अंग्रेजी के संदर्भ में ही बात करें तो हिंदी में जो है पहले संज्ञा आता है, सॉरी ये जो है पहले कर्ता आएगा, फिर जो है कर्म आएगा और फिर क्रिया होगी, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जबकि अंग्रेजी में क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक ये मोटा जो कहा जाए मोटा मोटा फ्रेमवर्क है कि अनुवाद करते समय ये ध्यान देना है। होता यह है कि अनुवादक सोर्स टेक्स्ट को जब कर रहा होता है ट्रांसलेट, तो उसके दिमाग में सोर्स टेक्स्ट की जो सेंटेंस फॉर्मेशन वाला स्टाइल है, जो उसके ग्रामेटिकल आधार है, वो भी एक तरह का कॉपी करने लग जाता है।
इसी कारण देखें तो पैसिव वॉइस में अंग्रेजी में वाक्य संरचना करने का बहुत जो है सामान्य जो चलन है, पर उसका नतीजा क्या होता है, हिंदी में जो वाक्य संरचना भी उसी तरह से बनानी शुरू कर देते हैं। हिंदी में जो है कृत्रिवाच्य का प्रयोग किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में कर्मवाच्य का है। तो यानी कि एक्टिव वॉइस हिंदी में है जबकि पैसिव वॉइस हो, तो पैसिव वॉइस का नतीजा क्या होता है, द वर्क हैज बीन डन बाय मी, यह कार्य मेरे द्वारा किया गया। अनुवाद करते समय नॉर्मली इस तरह की गलती जो होगी, जबकि इसमें जो है एक्टिव वॉइस में यानी कि कृत्रिवाच्य के रूप में वाक्य संरचना करते हुए होना ये चाहिए कि अनुवादक जो है ये करे कि मैंने यह काम किया है। तो इससे बचने का एक फॉर्मूले के रूप में जहां तक हो सके द्वारा शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य संरचना जो है वो ऐसी ना बनाई जाए, यानी कि उससे परहेज रखा जाए, लेकिन जहां आवश्यक हो, अनिवार्य हो, वहां पर इस तरह की जो है प्रयोग करने ही पड़ते हैं। और अगर ऐसे चलते हैं तो हम व्याकरण के संदर्भ में भी बात आएगी। व्याकरण की ही बात करें तो उसमें चाहे वो ये आ जाता है कि पुनरुक्ति की बात, दोष जैसे जो होता है, या पुनरुक्ति की एक तरह की व्यवहारिकता की बात करें। अब हिंदी में तो जैसे चलते चलते, ताजा ताजा, घर घर, अब ऐसे शब्द अगर प्रयोग आ रहे हैं, या दाने दाने को मोहताज होना, तो आप अंग्रेजी में भी उसी स्टाइल में नहीं कर सकते। तो वहां जैसे घर घर ही है तो वो डोर टू डोर है, दाने दाने के लिए जो है ऑन एवरी ग्रेन है, हाथों हाथ बिक जाना जो है ये है हैंड टू हैंड है, या गर्मा गर्म चाय, तो एक तरह से हॉट या फ्रेश टी, इस तरह के शब्दों, यानी कि आपको भाषा के व्याकरणिक जो विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक पक्षों को ध्यान में रखना होगा। चाहे वो सर्वनाम की बात करें, जैसे प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे प्रियंका जी टाइम बता दीजिएगा, मैं कितनी देर तक है, मैं उस हिसाब से अपनी बात संक्षेप में करूँ या क्या। सर आप अभी 10 मिनट तक आराम से बोल सकते हैं सर। जी जी, थैंक यू। जी ओके। तो प्रोनाउन की जो बात कर रहे हैं या हिंदी के सर्वनाम की, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे भाषा के साथ साथ उसका संस्कृति वाला पक्ष भी शामिल है, भाषिक तो है ही, और इस प्रोनाउन के संदर्भ में बात करूं मैं, अंग्रेजी में आप देखिएगा हम जो प्रयोग करते हैं जैसे ही शी इट जो है, अब ये जो है इसके लिए जो है वह वे का प्रयोग किया जाता है, और हम ऐसे ही भाषा के संदर्भ में ही हम अपने से आदर, बड़ों को आदर देने के लिए, गुरुजनों को आदर देने के लिए या औपचारिक संबोधन करने के लिए भी वाक्य संरचना जो बनाते हैं वो बहुवचन वाली बना देते हैं। आज विमलेश कांति वर्मा जी जो है हमारे साथ जो है मौजूद है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए विमलेश कांति वर्मा जी मौजूद हैं, जो मैंने ये शब्द है किया, जबकि विमलेश कांति वर्मा जी जो है सिंगुलर है, अकेले व्यक्ति हैं, सिंगल पर्सन है, लेकिन वाक्य संरचना के स्तर पे हमने जो उनके प्रति आदर भाव को व्यक्त करने के लिए है शब्द का प्रयोग किया है। तो ये क्या है, हिंदी की संस्कृति, भारतीय संस्कृति का पक्ष है कि भाषा के संदर्भ में अगर देखें तो सर को संबोधित करते हुए है आना चाहिए, यानी कि आदर का प्रयोग किए बिना वह शब्द का प्रयोग करते हुए होना चाहिए। लेकिन हम वे शब्द का प्रयोग करें, है का करें, तो वो क्या बता रहा है कि हम अपनी संस्कृति के को ध्यान में रखते हुए सिर्फ व्याकरण ही नहीं, व्याकरण के साथ साथ सांस्कृतिक आयाम भी उससे जो जुड़ा हुआ उसको लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही बात अगर करते हैं अर्थपरक समस्याओं को लेकर भी है, उसमें खास तौर पे जैसे देखा जाए तो उसका डिनोटेटिव मीनिंग, कनोटेटिव मीनिंग, इस तरह की समस्याओं से बचने का भी तरीका जो है वो देखना जरूरी होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक शब्द है स्मॉल। स्मॉल का जो है नॉर्मली अर्थ हम क्या लेंगे, छोटा, लेकिन स्मॉल शब्द जब अलग अलग मतलब एक तरह से जो है विशिष्ट अर्थ छवियों को व्यक्त करने के लिए जब शब्दों के साथ दूसरों शब्दों के साथ जुड़ रहा है तो हर जगह वो छोटा शब्द का नहीं बनेगा,
लाइक स्मॉल कॉइन, स्मॉल ब्रदर या जो है यंगर ब्रदर कहिएगा, ऐसे है। तो क्या आप इसको जो है इसको कॉइन का तो छोटा सिक्का कह दिया, लेकिन क्या जो है छोटा भाई करेंगे? छोटे भाई को जो है हम क्या जो है स्मॉल ब्रदर कहेंगे या यंगर ब्रदर कहेंगे? तो मेरा मतलब रिवर्स पोजीशन में देखिए कि कहाँ हम छोटा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और छोटा जो स्मॉल के लिए हो रहा है, और कहाँ पर यही छोटे शब्द के संदर्भ में ही हम स्मॉल का ना प्रयोग करके एक तरह से जो है यंगर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ब्रदर के सेंस में जो है। ऐसे अगर ब्लू शब्द को ही देखें तो ब्लू ब्लड, ब्लू बुक, ब्लू चिप, ब्लू कॉलर यूनियन, ब्लू गैज, ब्लू मून, ब्लू प्लेट या ब्लू साइड। अब हर जगह ये ब्लू यहाँ पे जो शब्द आ रहा है ये हर जगह नीले का संबोधन नहीं दे रहा है, और ना ही सबसे बड़ी बात देखिए ब्लू अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये भी कहीं कोई वो एक तरह से जो है नीली क्रांति नहीं है, जबकि व्हाइट रेवोल्यूशन या ग्रीन रेवोल्यूशन जो है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति की बात करेंगे, लेकिन ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य क्रांति है। ऐसे ही ब्लू ब्लड जो है अभिजात्य है, ब्लू बुक सरकारी रिपोर्ट है, और ब्लू चिप को तो हम कंपनीज वगैरह के संदर्भ में ब्लू चिप को ट्रांसलिटरेट करके ही लिखते हैं ब्लू चिप ही। तो कहने का मेरा मतलब है कि अनुवादक को अर्थ के संदर्भ में भी समस्याओं को देखना पड़ता है, उनको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, और सिर्फ अर्थ ही नहीं, अर्थ के साथ जो संदर्भ जुड़े होते हैं, खास तौर पे जो सांस्कृतिक आयामों वाले हों, उनकी तरफ भी गौर कर। अगर पौराणिक या मिथकीय संदर्भों में देखें, चाहे जो है कर्ण की बात करते हैं, दानवीन कर्ण जैसे कहा, मजनू कह दिया, या जो है नारद है, नारद मुनि की भूमिका, या जयचंद जैसी जो बात की, तो इस तरह के जो शब्द सिर्फ जो है शब्दों के जरिए अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं, इनका जो है बाकायदा कोई ना कोई संदर्भ है। उस संदर्भ को भी अनुवादक को समझना ये चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसके बहुत बढ़िया उदाहरण जो है अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, मदर है, सिस्टर है, फादर है। अब चर्च के फादर जो है वो पिता नहीं है, मदर टेरेसा जो है माँ टेरेसा नहीं है, और हॉस्पिटल की न संदर्भ देखिएगा। और अगर बात करते हैं जैसे गुड फ्राइडे जैसा ही शब्द है, अब गुड गवर्नेंस के लिए तो सुशासन लिख दिया अनुवादक ने, अगर वही उसका माइंडसेट हो तो गुड फ्राइडे की बात आए तो क्या ये शुक्रवार हो जाएगा? यहाँ गुड फ्राइडे का सांस्कृतिक संदर्भ है, तो अनुवादक को उस सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना है, और इस तरह से जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब वो चलेगा तो बेहतर अनुवाद की स्थिति में होगा। जैसे एनिवर्सरी शब्द की ही बात करें, एनिवर्सरी जो है वर्षगांठ हो गई, शादी की सालगिरह हो गई, या जो जन्म तिथि के हिसाब से है, लेकिन क्या जो है गांधी जी की जयंती, तो वहां तो हम वर्षगांठ नहीं कह रहे, और अगर गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं तो वो वर्षगांठ ना होकर पुण्यतिथि शब्द उसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो अनुवादक को इस तरह के अंतरों को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, और यही अंतर जो है ये कहा जाए कि मुहावरे लोकोक्तियों के संदर्भ में भी है, और बात अगर मैं पाठ की जो बात करूं यानी कि टेक्स्ट के संदर्भ में, पाठ की प्रकृति के संदर्भ में, तो खास तौर पे जो अभिधा परक पाठ है, ज्ञान का साहित्य जिसे कहा जाए कि नॉलेज टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, या फिर सूचनात्मक साहित्य, उसमें हमें एक तरह से पारिभाषिक शब्दावली का ध्यान रखना या फिर पाठक वर्ग का ध्यान रखना, इस तरह की बातें रहती हैं। तो कुल मिला के चुनौतियां अनुवादक के सामने बहुत है, लेकिन अनुवादक एक ऐसा जो है ये कहा जाए कि सीरियसली डिवोटेड पर्सन है कि वो इन चुनौतियों का सामना करते हुए अनुवाद करने में जुड़ा रहता है।
अब इन चुनौतियों का सामना करने के दौरान जो है किस तरह के जो है वो स्ट्रेटजीज अपनाता है, इस पर भी बात की जाती है। तो अलग अलग विद्वानों ने कहा है, जैसे विनय और डर्बल नेट ने जो है कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं। उसके अलावा जो वेनुटी ने बात की है, हेनरी ब्लॉक ने की है, पश्चिम के ये अनुवादक चिंतक जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कुल मिला के देखें, अब उन्होंने जैसे कोई बताई है, किसी ने बोरोइंग कहा, काल कहा, कहीं वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की बात होती है, या फिर अनुकूलन की बात है, एडेप्टेशन की बात है, या विधांतरण की बात भी होती है। ये सब जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज है और केस टू केस वेरी करती हैं टेक्स्ट के नेचर के अकॉर्डिंगली। पर इस सब के मूल का मंत्र क्या है? नेचुरल क्लोजेस्ट इक्वलेंट। और ये नेचुरल क्लोजेस्ट इक्वलेंट की प्रक्रिया में अनुवादक को अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है? एक तरह से कहा जाए सापेक्षता और समझौते की स्थिति में आना पड़ता है, और वो इस समझौते को सहजता से स्वीकार करते हुए, भले ही चाहे उसके ऊपर आक्षेप कुछ भी लगा दिया जाए, उसके अनुवाद को लेकर कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन वो अनुवाद साधना में जुटे रहने वाला मौन साधक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रियंका जी धन्यवाद, और आप सबने मेरे विचारों को सुना उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अनुवाद की चुनौतियों को हमारे समक्ष रखा है। सर आपने बताया कि व्यवहारिक क्रम से ही जो है अनुवाद का सिद्धांत निकलता है। बिल्कुल सही सर, एकदम जब हम व्यवहार में लाएंगे तभी सैद्धांतिकी की बात आएगी। और सर आपने बताया कि व्याकरणिक पक्षों को किस तरह जो है महत्वपूर्ण देना चाहिए, उसको जो व्याकरणिक पक्षों को ध्यान में रखकर किसी अनुवादक को अनुवाद करना चाहिए। लेकिन केवल व्याकरणिक पक्षों को ही ध्यान में रखते हुए केवल शब्दों का अर्थ बता देने से ही अनुवाद नहीं हो जाएगा, बल्कि उनके संदर्भों को, उनके सांस्कृतिक पक्षों को भी हमें ध्यान में रखकर अनुवाद करना चाहिए। तो बहुत सुंदर वक्तव्य सर आपका रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। अब मैं चारू माथुर मैम से अनुरोध करूंगी कि मैम आप अपना पीपीटी प्रस्तुत कर सकती हैं। थैंक यू प्रियंका। मैम अलाउ कर दिया है आपके पीपीटी को। हाँ, मैं बस वो खोल रहा है मेरा। जी जी एक्चुअली नेट की स्पीड यहाँ पर बहुत स्लो हो गई है 2-3 दिन से, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैम पूरे इंडिया में ही नेट बहुत स्लो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपनी पीपीटी शुरू करी थी, तो मैंने थोड़ा सा बताया था पीपीटी में मैंने अपना मेरा जो टॉपिक मैंने लिया है मशीनी अनुवाद। तो मशीनी अनुवाद हमारा कितना सार्थक है और कितना उपयोगी है, क्योंकि आजकल एज ए फ्रीलांसर जैसे मैं पिछले काफी टाइम से काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो है मशीनी अनुवाद सॉफ्टवेयर्स को प्रेफर करते हैं। जो बड़ी बड़ी ट्रांसलेशन एजेंसीज और कंपनीज हैं वो सॉफ्टवेयर को प्रेफर करती हैं कि आपको सॉफ्टवेयर आता है या नहीं आता है, या आपने उस पर काम किया है या नहीं किया है। कुछ मेरे पास सॉफ्टवेयर के किए हुए काम आए भी एडिट करने के लिए, तो उसमें मैंने देखा है कि जैसे अभी सर ने बताया है कि जितना भी वो सब बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन ये हम तभी पॉसिबल कर पाते हैं जब ट्रांसलेशन करने वाला कोई एक पर्सन हो, कोई एक ह्यूमन बीइंग हो। अगर हम ये सारा ट्रांसलेशन मशीन से करवाएंगे, कंप्यूटर के जरिए करवाएंगे, सॉफ्टवेयर के जरिए कराएंगे, तो हम कुछ भी अचीव कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी जब ये मशीन ट्रांसलेशन शुरू हुआ था, तो उसके कुछ फायदे नजर आए थे, और उन्हीं फायदों को देखकर ये कॉन्सेप्ट जो थी वो आगे बढ़ी। तो मैं बहुत थोड़े में इन फायदों को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये हुआ कि जब मशीनी अनुवाद शुरू हुआ, मैकेनिकल ट्रांसलेशन शुरू हुआ, ऑटोमेशन शुरू हुआ इसमें, तो उसका काम बहुत जल्दी निकल कर सामने आने लगा।
मतलब जब एक ह्यूमन बीइंग एक चीज को ट्रांसलेट करता है तो नेचुरली वो उसकी सारी चीजों को ध्यान में रखकर ट्रांसलेट करता है और उसमें उसको टाइम लगता है। लेकिन जब हम मशीन से करवाते हैं तो जस्ट वो तो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, ऑफ ब्लिंक ऑफ एन आई, आपकी पलक झपकी और आपका ट्रांसलेशन आपके सामने है। उसके बाद आजकल जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं वो इस तरह के हैं कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर आप उन पर काम कर सकते हैं। तो इंटरनेट की उसमें इतनी ज्यादा मजबूरी नहीं रह गई है। आपके पास आपकी फाइल आ गई, आपके पास अपना सॉफ्टवेयर है, आपने उस पर काम कर लिया और जब आपने काम कर लिया तो फाइल आप वापस उसमें अपलोड कर दीजिए और उसको कम्युनिकेट कर दीजिए। इसके अलावा ये है कि सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत से ऐसे लोग भी जिनको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की पूरी नॉलेज नहीं है, थ्योरी नॉलेज नहीं है, वो भी उस काम को कर सकते हैं। अब ये एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी है कि अगर एक ऐसा आदमी बैठ के कोई चीज ट्रांसलेट कर रहा है जिसको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, तो ठीक है, उसने उसको कर तो दिया, आपका काम निकल गया, लेकिन वो काम कितना सही है कितना गलत है ये उसके एंड रिजल्ट पर पता चलेगा जब रिव्यूअर के पास लिए पहुंचती है या जिसने ट्रांसलेशन करवाया है उसके पास ही पहुंचता है, तब पता चलता है कि नहीं ये तो काम गलत हो गया। इसको मैं आगे अपने पॉइंट्स में विद एग्जांपल में दिखाऊंगी भी। इसके अलावा क्योंकि कंप्यूटराइज्ड ट्रांसलेशन जो होती है वो ग्लॉसरी पर चलती है, आपकी एक स्टैंडर्ड ग्लॉसरी बना दी गई है और वो ग्लॉसरी जो है उसके बेस पर आपके उसमें एक शब्द का एक अर्थ दे दिया गया है। जैसे अभी सर ने एक एग्जांपल दिया सड़ा हुआ, तो सड़ा हुआ का अर्थ वहां पर लिया जला हुआ। अब अगर कोई कुकिंग आइटम है तो वो जला हुआ ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्सन के लिए है कि वो सड़ा हुआ था तो वो इट मीन्स वो, क्योंकि पर्सन तो कुकिंग आइटम नहीं है, वहां पर ये आएगा कि वो मतलब परेशान था, दुखी था, लेकिन कंप्यूटर जो है वहां पर भी उसको सड़ा हुआ ही लेगा, जला हुआ ही लेगा। तो इसलिए मैकेनिकली एक उसमें यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार। इसके अलावा अब जैसे हम आजकल MS ऑफिस में अगर वर्ड में काम करते हैं या किसी में भी काम करते हैं तो बहुत सारे हमारे ग्रामेटिकल सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि आपकी एरर्स को हाईलाइट कर देते हैं और उसको ठीक भी कर देते हैं। सेम चीज हमारी ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर्स में भी आ गई है कि अगर जो गलती है तो जो मोटी मोटी गलतियां हैं वो तो ये सॉफ्टवेयर बता देते हैं कि भाई आप इसको कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनकी ग्लॉसरी और उनके जो अंदर के इंडेक्स हैं वो किस तरह के बने हुए हैं, उसके हिसाब से वो बता देते हैं। तो अब मैं आती हूँ सीमाओं पे, लिमिटेशंस पे, कि मैकेनिकल ट्रांसलेशन की, ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन की क्या सीमाएं हैं। सबसे पहले तो ये कि ये व्याकरण के नियमों को ध्यान ही नहीं रखता। जैसे मैंने एक बड़ा छोटा सा उदाहरण लिया है गूगल ट्रांसलेशन पे, मतलब मेरे से कहा जाता है कि आप गूगल ट्रांसलेट मत कीजिएगा, तो मतलब गूगल ट्रांसलेट तो हम कर ही नहीं सकते, हम डिपेंड कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने ये उदाहरण दिया है कि लीला ने मुस्कुराते हुए स्वर्ण सिंह को फूल दिया और चली गई। अब आप ये देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक और लगाया है, इसके हिसाब से इंग्लिश में भी एक और आना चाहिए था, लेकिन गूगल ने 2 जगह और दिया है। ये एक ही ट्रांसलेशन है, सेम ट्रांसलेशन है, लेकिन उसने 2 जगह और दिया है। इसका मतलब ये है कि गूगल की ग्लॉसरी में ये थीम फीड नहीं है कि हमें सेंटेंस की संरचना को देखते हुए, उसके सिंटैक्स को देखते हुए हमें ट्रांसलेशन करनी चाहिए। इसके बाद भाषिक अनुप्रयोगों की कमी क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैकेनिकल ट्रांसलेशन जो होता है वो सारा उसकी इनबिल्ट ग्लॉसरी पर डिपेंड करता है। तो उसकी इनबिल्ट ग्लॉसरी भी बनाने वाले ह्यूमन बीइंग ही हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये ग्लॉसरी प्रिपेयर करने वाले होते हैं ये टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन लैंग्वेज क्वालिफाइड भी हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए उनके तैयार की हुई ग्लॉसरी में ऐसा कुछ नहीं होता है जिसमें स्पेलिंग चेक हो या कुछ और भी इस तरह की कोई चेकिंग हो जो हमारी ट्रांसलेशन अप टू डेट हो जाए। उसके अलावा क्रिएटिविटी नहीं आती। जैसे मैंने फिर गूगल ट्रांसलेशन का उदाहरण लिया है, ये एक फ्रेज है कैट एंड डॉग, लास्ट नाइट रेन वाज लाइक कैट एंड डॉग।
तो हियर कैट एंड डॉग इज अ फ्रेज, लेकिन गूगल को नहीं पता, गूगल मशीन में ये चीज फिक्स नहीं है कि फ्रेज को किस तरह से ट्रांसलेट करना चाहिए। उसने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया कि कल रात बिल्ली और बारिश जो थी वो बिल्ली और कुत्ते की तरह थी, क्योंकि उसको नहीं पता कि कैट एंड डॉग जो है वो फ्रेज है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसीलिए इसको हम अगर सरल भाषा में कहें कि मक्खी पर मक्खी मारने वाला ट्रांसलेशन ये करता है। इसकी सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जैसे हमारे इंडिया में है, या कि जहां पर ट्रांसलेशन बिल्कुल दो विपरीत भाषाओं का होता है। अगर आप एक समान क्षेत्र की भाषाओं को, जैसे इंडिया में हमारे पास इस समय 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं ली हुई हैं। अब कोई भी व्यक्ति 22 भाषाओं का जानकार नहीं हो सकता, हद से हद वो 3-4, कोई बहुत जिनकी टूरिंग फैमिली की टूरिंग जॉब रही है वो 5 भाषाओं के भी जानकार होते हैं। तो ऐसे लोग मतलब उनकी प्रोफिशिएंसी किसी एक भाषा में ज्यादा होती है, एक में कम होती है, वो फिर भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर की ट्रांसलेशन की बात आती है तो उसमें वो अपने देखता है इंग्लिश का ग्रामर दूसरा होता है, हिंदी का ग्रामर दूसरा होता है। अभी सर ने बहुत अच्छे उदाहरण दिया कि हमारे जो हिंदी के व्याकरण के नियम हैं वो इंग्लिश की ग्रामर पर लागू नहीं होते हैं, और इसीलिए मैकेनिकल ट्रांसलेशन जो ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन है वो उसको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता है। दूसरी बात आती है, दूसरी परेशानी आती है हमारी पर्यायवाची शब्दों का। अगेन यहाँ पे ग्लॉसरी की लिमिटेशन है। मैंने फिर एक उदाहरण डाल के देखा, अगर मैं कैसल डालती हूँ तो कैसल का हिंदी शब्द उसने नहीं दिया मुझे, कैसल को उसने ट्रांसलेट कर दिया कैसल में। हाँ, नीचे कुछ शब्द दिए, किला, गढ़ी, गढ़, दुर्ग, किला, इस तरह के बहुत सारे शब्द दिए। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आता है कि किला का एक शब्द महल भी होता है, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये कि ये पर्यायवाची ना तो पूरे हैं और ना मतलब उपयोगी हैं। लैंग्वेज कलेक्शन इनका बिल्कुल पुअर है। जैसे अगर हम जहां पर इसका प्रोमिनेंट नाम है वहां तो पता है, जैसे मैंने उदाहरण लिया राम गोज, राम जाता है, सीता गोज, सीता जाती है। अब यहाँ पर राम और सीता हमारे रामायण की वजह से ग्लोबली नोन नेम है। लेकिन अगर मैं इसी शब्द को लीला के रूप में ले आती हूँ, लीला सेड आई एम गोइंग, तो गूगल को नहीं पता कि लीला भी एक नाम है। उसने वहां पर लिख दिया लीला ने कहा मैं जा रहा हूं, यानी ये जेंडर फ्री ग्लॉसरी है। उसको नहीं पता मैं टीचर ने कहा बच्चों ये काम करो, तो गूगल क्या कहेगा, टीचर कहता है, अध्यापक कहता है। उसको नहीं मालूम कि अध्यापक मेल है कि फीमेल है, उसको सिर्फ ये मालूम है। यहाँ पर वैसे भी अगर आप गूगल में देखिए तो वो मोस्टली जब तक कि इस तरह का कोई वर्ड ना आए जो वर्ड फेमस नेम हो, वो मोस्टली जाता है, आता है, करता है, खाता है, यही लेता है। इसके बाद हमारा आता है भाषा विशेषज्ञों का तकनीकी ज्ञान। अगर हम इसको रिवर्स करके देखें कि तकनीकी विशेषज्ञों का भाषा ज्ञान, दोनों ही एक बराबर है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले हैं वो लैंग्वेज एक्सपर्ट हो सकते हैं लेकिन होते नहीं हैं। इसी तरह से जो काम करने वाले हैं, उन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने वाले हैं, वो भाषा विशेषज्ञ होते हैं, उसमें से उनको तकनीक का ज्ञान कितना है ये नहीं पता। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि दोनों चीजें एक पर्सन में हो, ये मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इस वजह से हमारा जो है कंप्यूटर ट्रांसलेशन या मशीन ट्रांसलेशन वो एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके बाद अगर हम कंप्यूटराइज ट्रांसलेशन लेते हैं, मैकेनिकाइज ट्रांसलेशन लेते हैं, तो अभी जैसे इस आप लाइव एग्जांपल आपके सामने है, मेरी प्रेजेंटेशन देखते से मैं 2 बार इसमें हर्डल आई। कभी कंप्यूटर मेमोरी ब्रेक हो जाती है, कभी हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, कभी सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं है। तो अब ये सारी बातें जो पर्सन
उस समय ट्रांसलेशन कर रहा है वो हैंडल नहीं कर सकता। वो उसको आगे रिपोर्ट करना ही पड़ता है कि भाई मेरे इसमें इस सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम आ रही है, या बग आ गया है, या कुछ और प्रॉब्लम है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो अब उसने अपनी कंप्लेंट रेज करी, उसकी कंप्लेंट आगे ऑफिशियल्स के पास गई, वो एक्सेप्ट हुई, बजट सैंक्शन हुआ, प्रॉपर आपका एक्सपर्ट बुलाया गया। जब वो एक्सपर्ट आएगा, जब वो उसको जितना भी टाइम लगेगा, 1 घंटे से लेके 1 दिन या 15 दिन तक, तब जाके वो काम आके शुरू होगा। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद लोकलाइजेशन जो बहुत जरूरी है। लोकलाइजेशन में मैंने उदाहरण लिया है चावल का। राइस का मीनिंग चावल है, ठीक है। चावल जो है ये हमारे पूरे नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न बेल्ट में चलता है, लेकिन आप अगर कलकत्ता साइड में या उड़ीसा साइड में जाएं, वहां पर जाएगा धान, कुछ गांव, कुछ स्टेट्स में जाएगा मूंजी, कहीं जाएगा सेला। ये एक ह्यूमन बीइंग को, एक अनुवादक को पता होगा, लेकिन मशीन को नहीं पता होगा। अगर वो साउथ की कोई कहानी आ रही है और उसमें वो चावल दे रहा है, तो वो राइस लिखा है तो वो उसको चावल ही देगा, वो उस पर्टिकुलर स्टेट में बोले जाने वाला शब्द को नहीं लेगा। इसके अलावा सही प्रशिक्षण, यहाँ पर फिर दोनों चीजें आती हैं कि अगर जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनको लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, और जो लैंग्वेज एक्सपर्ट है उनको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। दोनों को प्रॉपर नॉलेज हो, तभी हमारी मैकेनिकल ट्रांसलेशन जो है वो सक्सेसफुल होती है, नहीं तो हमारी सक्सेसफुल नहीं होती है। अब ये सारी बातें देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत में मशीनी अनुवाद की उपयोगिता क्या है। तो मेरा मानना ये है कि भारत में मशीनी अनुवाद की उपयोगिता उतनी ही है जितना कि अगर आप किसी भी फील्ड को लेते हैं, आप लिटरेचर को लेते हैं, तो वहां पर हम क्योंकि मोस्टली मेटाफर्स, फ्रेजेस का यूज करते हैं, वो मैकेनिकली नहीं हो सकता, इसलिए हम वहां पर मैकेनिकल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। अगर हम लीगल ट्रांसलेशन को लेते हैं, तो लीगल ट्रांसलेशन में भी बहुत ज्यादा बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, मतलब वहां पर एक भी शब्द या एक भी अक्षर या किसी भी विराम चिन्ह का इधर से उधर होने में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। सबसे पहले अगर हम जैसे इंग्लिश में लिखते हैं मिस्टर, या कोई भी सॉल्यूशन लगाते हैं मिस्टर या मिस या कोई, तो उसके आगे फुल स्टॉप लगाते हैं, डॉट लगाते हैं यानी बिंदु लगाते हैं। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर को लेंगे तो वो उसको एक विराम चिन्ह मान लेगा, फुल स्टॉप मान लेगा, उसके हिसाब से वह सेंटेंस खत्म हो गया और वो सेंटेंस वहां पर खत्म कर देगा, चाहे वहां पर 1-2 अक्षर ही लिखेगा। तो लीगल ट्रांसलेशन भी नहीं ले सकते। अगर हम वेदर फील्ड को लें, तो वेदर फील्ड में बहुत कुछ एक ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको हम कुछ हद तक, यहाँ पर भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरा 100% हम उसको मैकेनिकल कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये है कि हम उसका एक मतलब कुछ हद तक उसको मैकेनिकली ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी मैनुअल ट्रांसलेशन या मैनुअल एक्सपर्ट की प्रेजेंस जरूरी है। सेम केस लीगल की तरह से मेडिकल का भी है। तो मेरा मानना यह है, और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि हमारे भारत में हमारा जनता पॉपुलेशन की दृष्टि से ही नहीं, भाषा की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इन सब बातों को ध्यान में रख के इंडिया की सिनेरियो में, इंडिया की पॉपुलेशन में, इंडिया के एनवायरनमेंट में फिट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है कोई टेक्निकल एक्सपर्ट जिसको लैंग्वेज की भी प्रोफिशिएंसी हो, वो शायद कोई एक सॉफ्टवेयर इस तरह का डेवलप कर ले कि वो एक लैंग्वेज या एक पर्टिकुलर बेल्ट को की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के, एक पर्टिकुलर फील्ड को ध्यान में रख के एक 100% एक्यूरेसी के लिए, ट्रांसलेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर ले, तो एक बात अलग है। नहीं तो प्रैक्टिकली इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर होना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी
पॉसिबल नहीं है। तो मेरा मानना तो यही है कि आज के बेशक हम तकनीक के हिसाब से बहुत विकसित हो गए हैं, हम चांद पर भी पहुंच गए, हम मंगल पर भी पहुंच गए, लेकिन अनुवाद करने के लिए हम ह्यूमन को मशीन से रिप्लेस नहीं कर सकते। इवन रिप्लेस क्या, हमें मशीन की हम हेल्प भी नहीं ले सकते, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि मशीन के ट्रांसलेशन को एडिट करने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में ट्रांसलेटर ओरिजिनली ट्रांसलेट कर सकता है, क्योंकि उसमें किसी की मतलब उसमें जो मशीन की गलतियां हैं उनको ठीक करो पहले, फिर आप उसको दोबारा से रीराइट करो, तो वो टाइम और कॉस्ट ज्यादा लगती है। उसकी जगह अगर आप ओरिजिनली ही ट्रांसलेटर को देंगे तो वो टाइम भी कम लगेगा और आपकी कॉस्ट सेविंग भी होती है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि हम लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे या टेक्निकल एक्सपर्ट को लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे, ट्रांसलेशन में मशीन ट्रांसलेशन सक्सेसफुल इंडिया में सक्सेसफुल होना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से मशीनी अनुवाद प्रक्रिया को समझाया है कि भारत में मशीन प्रक्रिया अनुवाद की प्रक्रिया क्या है और उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। बिल्कुल एकदम आपने सभी चुनौतियों को एकदम बारीकी से बताया है कि मशीन मशीन ही है, वो शब्द का अर्थ तो बता देगा, वो भी अर्थ बहुत सीमित मात्रा में वो लेता है मशीन, लेकिन उसमें जो रचनात्मकता है, जो भाषा है, जो उसके मतलब जो एक तरह से सांस्कृतिक पक्षों से या जोड़ना है या किसी और भाषा, जैसे भाषा के बहुत सारे एक किसी अर्थ की जो है शब्द के अर्थ बहुत सारे होते हैं, तो उन सभी शब्दों में अर्थों में कौन सा सटीक बैठ रहा है उस वाक्य के साथ, वह नहीं कर पाता है मशीन। तो मशीन से निश्चय ही अच्छा अनुवाद हमारे सामने नहीं आता है, और कई बार तो देखने में आता है कि सरल शब्दों का तो मशीन अनुवाद कर देता है, लेकिन यदि हम उसकी जगह कुछ कठिन शब्द या ऐसे शब्द दें जो प्रचलन से बाहर है और उसका हमें अनुवाद करना है, तो वह मशीन बिल्कुल नहीं कर पाता है। तो एकदम आपने बिल्कुल सही कहा कि मैम, इंडिया में जब तक अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं आ जाएंगे अनुवाद के क्षेत्र में, तब तक तो अनुवाद हमें खुद ही करना पड़ेगा, ताकि उसमें जो अनुवाद है, अनुवाद करने के बाद जो उसकी रचनात्मकता है, उसकी जो भाव है, वो सब बची रहे। इसलिए मशीन पे तो डिपेंड नहीं कर सकते, बस थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं। अब मैं विशेष धन्यवाद इस सेमिनार में, वेबिनार में देना चाहूँगी विमलेश कांति वर्मा सर जी को। आप सुबह से लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर, आप इस कार्यक्रम को सुबह से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सर, आप अगर इस कार्यक्रम पे कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो आमंत्रित है सर। नमस्कार, सुनाई पड़ रहा है? जी जी सर, बिल्कुल। नमस्कार। ये गोष्ठी बहुत अच्छी रही और मुझे अच्छा लगा कि जो विद्वान यहाँ आए उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही। मशीन ट्रांसलेशन का जो व्यावहारिक पक्ष है उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बात की। मैं ये कहना चाहता था कि मशीन ट्रांसलेशन वहाँ ज़्यादा उपयोगी होता है जहाँ हमको भाषा कम आती है, उसमें सुधार किया जा सकता है। वो एक ऐसा सहायक उपकरण है, वो आपका आधार नहीं बनता, लेकिन वो सहायक के रूप में हर जगह प्रयोग होता है। डॉक्टर हरीश सेठी जी से बहुत दिनों बाद इस मंच पर मिलने का मौका मिला। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातें कही हैं, उनको बधाई। और जो पेपर पढ़े गए सब मैंने ध्यान से सुने, सब ने बड़ी मेहनत की है और मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा है जिस पर बारंबार चिंतन होना चाहिए, विस्तार से चिंतन होना चाहिए, क्योंकि ये व्यावहारिक अनुवाद की चुनौतियाँ हैं। अनुवाद के इतने क्षेत्र हैं, हम ये जानते हैं कि अनुवाद के दो पक्ष होते हैं, एक कथ्य पक्ष है और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष है। अच्छा अनुवाद वो है जो कथ्य और अभिव्यक्ति दोनों को जोड़कर चलता है, लेकिन ये कठिन है। तो जो कथ्य है वो ठीक तरह से रूपांतरित हो सके, ये तो पहली आवश्यकता है। लेकिन
अभिव्यक्ति की पठनीयता जो है वो दूसरी महत्वपूर्ण अर्हता है। अगर वो पठनीय नहीं हुआ तो फिर वो अच्छा अनुवाद नहीं है। और इसी तरह अगर वो कथ्य को अभिव्यक्त नहीं कर सका तो वो ठीक है ही नहीं। इन दोनों का संयोग कैसे हो, क्योंकि क्षेत्र बहुत हैं। कहाँ जनसंचार का क्षेत्र है, तकनीकी अभियांत्रिकी का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है, अनेक क्षेत्र है, संविधान का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। सबकी शब्दावली अलग अलग है, सबकी जो शैलीगत विशेषता है वो विभिन्न है। वो कैसे ठीक से हो सके, ये अनुवादकों के लिए चुनौतियां हैं और यही व्यवहारिक अनुवाद की जटिलताएं या विशिष्टताएं हैं। इन सब शब्दों के साथ हम शोध संवाद मंच को, डॉक्टर दीवान को और प्रियंका को जो सुबह से इसमें लगे हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन मित्रों ने यहाँ पर आकर के अनुवाद संबंधी बहुत सी विशेषताएं हम लोगों को बताई हैं, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस सत्र के हमारे वक्ता रहे प्रोफेसर हरीश कुमार सेठी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर को अभी ज़रूरी काम से मीटिंग में जाना था, इसलिए सर अभी चले गए हैं। मैं सर का उनके वक्तव्यों के लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं चारू माथुर मैम जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और वरिष्ठ भाषा वैज्ञानिक विमलेश कांति वर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ यहाँ पे शोध संवाद के सदस्यता पूनम सप्रा जी मैम हैं, आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आप कार्यक्रम के शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने से लेके अभी तक भी आप हमारे साथ सक्रिय हैं, आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर अंजर हुसैन जी भी जुड़े हुए थे अभी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हमारे जो आज के वक्ता रहे थे उद्घाटन सत्र के प्रोफेसर मंजू मुकुल मैम जी, प्रोफेसर जगदीश शर्मा जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे दूसरे सत्र के जो वक्ता रहे थे डॉक्टर पारीन सोमानी मैम जी, सी जय शंकर देव जी और प्रोफेसर रिजवानुर रहमान सर, मैं उन सबका भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं शोध संवाद रिसर्च फोरम के अध्यक्ष जहीदुल दीवान जी का विशेष धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम को वेबिनार को जो है आयोजित किया और हम सभी को इस प्लेटफॉर्म पे अनुवाद को लेके जो चर्चा परिचर्चा करने का एक मौका दिया, उसके साथ ही पूरे शोध संवाद रिसर्च परिवार के सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे आज के जो पेपर प्रस्तुतकर्ता थे जिन्होंने बहुत अच्छे पेपर प्रस्तुत किया, किरण अय्यर जी, जिग्नेश जी और जो हमारे साथ थी आज सोनाली जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही जो हमारे आज की ये जो एबी लाइव है स्ट्रीम यार्ड के थ्रू जो हम कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे आज के श्रोता है जो है सर, मैं बता दूं कि 7,000 से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच चुका है आज का ये प्रोग्राम। तो मैं उन सभी के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इतने सारे जो है सुबह से लेके अभी तक आपने देखा, इसको शेयर किया। इसी आशा के साथ मैं आज की कार्यक्रम के यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और सर अगले जो हमारा कल के जो वक्ता हैं उसमें आप कल यहीं अभी जो मौजूद हैं वरिष्ठ भाषा वैज्ञानिक विमलेश कांति वर्मा जी, आप इनको कल सुन पाएंगे इनके जो सेशन है उनमें। और साथ ही हमारे कल के सेशन में जुड़े रहेंगे डॉक्टर शैलजा शर्मा जी, सक्सेना जी और डॉक्टर रवि कुमार जी और डॉक्टर रेखा सेठी जी। आप इन सभी को कल सुन पाएंगे। और आज फिर हम यहीं पे विदा लेते हैं ताकि हम कल फिर नई उम्मीद और अनुवाद पे नई चर्चा के उसमें शामिल हो पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबको नमस्कार। नमस्कार।